Hello students. Our today's topic is relationship between demand curve and marginal revenue. This topic is very much important so far as the equilibrium in different market structures is concerned. In the later part of the market, in oligopoly particularly, this concept will help you in understanding models like demand curve, Corno model, Bertrand model, Ashworth model. In monopoly, average revenue curve, this line. Average revenue curve, it's downward sloping, and marginal revenue curve, it lies below average revenue curve. This thing you know. Now, we will try to explore the relationship between marginal revenue and elasticity. You people know the point at which marginal revenue curve cuts the horizontal axis right here. If you draw a perpendicular to average revenue curve, at this point our elasticity is equal to 1. Our elasticity is equal to 1, and in this region elasticity is greater than 1, and in this region elasticity is less than 1. Fine. You can see it. This region elasticity is greater than 1, and here elasticity is less than 1. We have done this in class as well. So let's proceed. थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें मैथ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, but I assure you it isn't that difficult. We will come to this diagram later on. See, a linear demand curve has a form. ये equation है P is equal to A minus BQ. ये equation है linear demand curve. Linear demand curve means straight line. अगर horizontal demand curve है ऐसे है, let's do this downward sloping demand curve. Fine. See, this is our equation for linear demand curve. इस इक्वेशन में आप देख सकते हो जो प्राइस है इट इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. माइनस क्या शो करता है? इट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड को you people know shows negative relationship between quantity demanded and price. So इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हो ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन Q and P. So P is price and Q is quantity demanded. You people know this. Then what is this A? ये A क्या है? इस A को हम बोलते हैं intercept. We call it intercept. Intercept का मतलब होता है वो पॉइंट वर्टिकल एक्सिस पे, वो पॉइंट वर्टिकल एक्सिस पे जहां पर डिमांड करो इंटरसेक्ट वर्टिकल एक्सिस को करता है. सी, आई विल शो यू व्हाट दिस ए इज. सी, ये ए आप देख रहे हो, वर्टिकल एक्सिस को डिमांड करो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है. सो दिस इज आवर इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट आप लोगों को अब समझ आ गया. फाइन. नाउ व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज दिस बी in this equation? इस इक्वेशन में P प्राइस है, A intercept that you know right now, minus indicate करता है negative relationship, and Q is quantity demanded, and this B stands for slope. This B stands for slope. Slope हमें दिखाता है steepness, और इस केस में steepness of the demand curve. And what does that mean? See, suppose ये आपका demand curve है, ठीक है. इसकी शेप ऐसी, अगर डिमांड करो आपका थोड़ा फ्लैट होता है ऐसे, ये और ये, दीज टू आर डिफरेंट, राइट? अगर आप इसकी बात करोगे दिस इज टोटली फ्लैट हॉरिजॉन्टल. इन तीनों में डिफरेंस है. दीज थ्री कर्व्स आर डिफरेंट. और ये डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ये डिफरेंस कहाँ से आती है? इट इज डिसाइडेड बाय दिस बी जिसको आप स्लोप कहते हो. सो स्लोप शोज द स्टीपनेस. इट शोज द स्टीपनेस.
सो आई गेस इस इक्वेशन में ओवरऑल आपको एक आइडिया सा आया होगा. फाइन, लेट्स गो अहेड. देखिए, अब आप लोगों को पता है प्राइस जो है दैट्स इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. आप लोगों ने क्लास में पढ़ा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. आपने टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की और किस प्राइस पे सेल की. सपोज आप यू आर सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर आइसक्रीम. तो 10 आइसक्रीम आप बेच रहे हो और हर एक आइसक्रीम की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज. सो टोटल आपका रेवेन्यू कितना है, वो है 10 के हिसाब से प्राइस थी और क्वांटिटी आपने भेजी 10, सो इट इज 100 आपका टोटल रेवेन्यू. फाइन. So now that we know total revenue is equal to P into Q. अब ये वाली जो इक्वेशन है P is equal to A minus BQ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो. सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P. आपका P किसके बराबर है, A माइनस BQ, और मल्टीपल क्या करना है इसको, Q, and it will come to AQ minus BQ square. See, आपका जो टोटल रेवेन्यू है इट्स इक्वल टू AQ माइनस BQ स्क्वायर. यहाँ पर भी यही आया, टोटल रेवेन्यू इज AQ माइनस BQ स्क्वायर. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in this whole today's lecture is marginal revenue. Marginal revenue क्या होता है, marginal revenue होता है कि आपके टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ जब आपने एक एडिशनल यूनिट भेजा. आप 10 आइसक्रीम भेज रहे थे और आपके पास टोटल जो इनकम आ रही थी दैट वाज 100, और जैसे आपने 11th यूनिट भेजा और 11th यूनिट सेल करने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ. आप जब 10 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम सेल कर रहे थे, योर रेवेन्यू वाज, टोटल रेवेन्यू वाज 100. जब आपने 11th यूनिट सेल किया आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो है 110. सो टोटल रेवेन्यू में एडिशन कितना हुआ, 10 रुपीज का. सो दिस 10 रुपी इज योर, इट्स योर मार्जिनल रेवेन्यू. और अगर इसी चीज को हम मैथमेटिकली दिखाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू को, we show it as marginal revenue equals the derivative of total revenue taken with respect to quantity. See, यहाँ पर लिखा है marginal revenue is, this D stands for change या derivative. It shows change in total revenue due to change in Q. तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा they can understand it. और सिंस आई एज्यूम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, सो आप लोग इसको लिटरली ले लो कि इसका जो आंसर है इट्स मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो डिफ्रेंसिएशन करके आ रहा है इट्स A माइनस 2BQ. यूजुअली क्या होता है, टोटल रेवेन्यू हमारा था इट्स AQ माइनस BQ स्क्वायर, ये आपका टोटल रेवेन्यू था. इसको डिफरेंशिएट जब आप विद रिस्पेक्ट टू Q करोगे उसका आंसर आपको आएगा A माइनस 2BQ. सो इवन इफ अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है यू कैन स्किप इट फॉर नाउ. बस आप इतना ख्याल रखो कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू A माइनस 2BQ है और आपका जो एवरेज रेवेन्यू दैट इज A माइनस BQ. देखिए ये आपका डिमांड कर्व इक्वेशन है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन है. हमारा टॉपिक क्या था, डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशनशिप देखना. अब दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं. इन दोनों इक्वेशन में क्या सेम है, ए सेम है. बोथ द इक्वेशंस हैव सेम इंटरसेप्ट. दोनों इक्वेशंस में क्या है, सेम इंटरसेप्ट. व्हाट डज दिस मीन, सेम इंटरसेप्ट दोनों इक्वेशंस में, व्हाट डज इट मीन. आप देखो इस डायग्राम में, देखो ये डायग्राम में आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दिस वन और आपका जो डिमांड कर्व है दिस वन, दोनों सेम पॉइंट से, दोनों का इंटरसेप्ट सेम है ए. दोनों का जो ओरिजिन है वर्टिकल एक्सिस पे इट इज सेम.
जो कि अभी हमने इक्वेशन में भी यहाँ पर देखा कि दोनों का इंटरसेप्ट सेम है। तो दोनों में अगर डिफरेंस है वो किसका है? दोनों में डिफरेंस है स्लोप का। इन केस ऑफ डिमांड करो आर स्लोप इज बी, एंड इन केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू आर स्लोप इज twice b. Our slope is twice b. This is the important finding so far as the relationship of demand curve and marginal revenue is marginal revenue is concerned. आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए डिमांड कर्व का स्लोप -b है और आपका मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप क्या है? -2b. दैट्स वाई ये जो आपका टोटल डिमांड कर्व है, ये देखिए आप, ये आपका टोटल डिमांड कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू इसके हाफ में, एग्जैक्टली इसके हाफ में कट करता है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ट्वाइस द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप है ये ट्वाइस द स्लोप ऑफ योर डिमांड कर्व है। दैट्स व्हाई इट कट्स दिस रीजन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या टोटल डिमांड वाले रीजन को एग्जैक्टली हाफ में कट करता है एट दिस पॉइंट वेयर योर elasticity of demand is equal to 1. So this is all, and please इस वाले लेक्चर को आप अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच।